अभी आज आप लोगों ने पेपर पढ़ा? अभी आप लोगों ने पेपर पढ़ा? यस और नो? हैव यू गो थ्रू विथ टुडेज न्यूज़पेपर? पढ़े आप लोग? नो मैम। नो मैम। नो मैम। स्कूल फीस अभी 6 तारीख तक बंद है, तो ऑनलाइन क्लास का इम्पोर्टेंस तो है, इम्पोर्टेंस है ऑनलाइन क्लास का। स्कूल अभी 6 तारीख तक बंद रहने वाला है, जानते हैं आप लोग इस बात को? डू यू नो? यस मैम। हाँ, Yes, जब ma'am. जानते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लास थोड़े अच्छे से करना चाहिए आप लोग को। ओके, इस तरह से नहीं कि हम बस क्लास में बैठे हुए हैं, जो मर्जी आया कर रहे हैं, तो डोंट डू इट, ऐसा नहीं करिए, डू नॉट डू इट, इससे आपका इमेज खराब होता है। ओके, नाउ प्लीज कंसंट्रेट अगेन, नाउ प्लीज कंसंट्रेट अगेन। और we have in class 6 we have already studied about made Hinduism, पढ़ा था, याद आ रहा है? Yes or no? Class 6, in class 6 Yes, ma'am. Hinduism, Buddhism, Jainism and Christianity. Are you remembering? Yes, ma'am. कट जा रही है, फिर कट जा रही है। Shani, not clear. No, ma'am. Page number 141. 140. मैम कट कर आ रही है। Now let us start. Board is visible? Board आप लोगों को दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In class 6 we have already studied about Jainism, Buddhism, Zoroastrianism, Hinduism and Christianity. And in class 7 we will study Islam, Sikhism and one major religion is also Bhakti movement, about the Bhakti movement. And Ma'am, और Sufism, yes, Bhakti movement and Sufism. तो रिलीजन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? Why do we study major religion? तो for this we have to think one thing, that India is a land of diversity. There are different type of diversities as found in India, in our country. Religion, different religion, people of different religion live here, and they together and together and with harmony, both together and harmonious. We try to create an harmonious environment to live peacefully and enjoy together. That is the. तो हम लोगों को सब रिलीजन के बारे में बताने के there is one main point is that God is one. In our Arya Samaj, you children also study that God is one. और कोई भी धर्म, नॉट ए सिंगल रिलीजन, हम लोगों को हर रिलीजन से हम लोग क्या सीखते हैं? ब्रदरहुड और लव एंड गॉड इज ओनली वन. दैट इज द. तो नाउ स्टार्ट our chapter. In class 6 we have learned about the major religions which prevailed during the ancient time period. Prevailed मतलब उस समय थे. In this chapter we shall learn about Islam and Sikhism and different religious movement which started in India during 7th to 15th century. What is the meaning of the religious movement? So when some कहिएगा कि orthodox feelings, orthodox thoughts come in any religion, especially in India, because there are traditionally the Indian people were orthodox. They were following, मतलब जिसको कहेंगे rigid, कट्टर. तो अब उसमें उसकी वजह से समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे
ऐसे पॉइंट आ जाते थे जिसको कि दूर करना जरूरी था इविल्स को, तो इसलिए रिलीजियस मूवमेंट भी चला, तो टू क्रिएट हार्मोनी among all these are the main cause of the different types of religious movement. Next कहता है Islam. So who was the founder of the Islam? First, the founder of the Islam was Prophet Muhammad. He was born in Mecca in 570 CE and was brought up by his uncle who took him over to Arabia. और उनके अंकल ने उनको बड़ा किया, जो उनको मक्का से अरेबिया ले गए. Is it clear? Later on, he married a widow under whom he was employed. बाद में उन्होंने एक widow मतलब एक ऐसी लेडी जो अकेली थी जिसके हस्बैंड नहीं थे, उससे उन्होंने शादी कर लिया और उसके साथ वो काम भी करते थे, उनके घर वो काम भी करते थे उन लेडी के घर. At the age of 40, he got the light of wisdom. अब जब 40 years के थे तो उनको क्या हुआ? Wisdom, बुद्धि, उनको ज्ञान मिला, light of wisdom, revelation. While meditating in a cave near Mecca. मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाकर बैठते थे, और जब मेडिटेशन में बैठे थे तो उसी समय उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई at that time. Okay, next is and declared himself the prophet of Allah. Prophet मतलब अल्लाह का दूत. तब उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि I am prophet of Allah, मतलब अल्लाह का दूत हूँ. It is believed that Quran was revealed to him. ऐसा कहा जाता है कि कुरान उनका मतलब ये उन्होंने ही कुरान को मतलब रिवील मतलब कुरान को बनाया था, नहीं बोलेंगे इसको. रिवील का मतलब होता है खोलना, कुरान को का प्रचार करना. क्या कि बनाया था नहीं बोलेंगे, बनाया था तो बोलते हैं गॉड ने उनको, जो गॉड एंजल गैब्रियल उनको दिए थे, तो बनाए नहीं थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के ही माध्यम से वो आया था. रिवील का मतलब फिर से खोल देना, बता देना कुरान के बारे में. इट इज अ होली बुक ऑफ मुस्लिम्स. गैब्रियल मोहम्मद वाज अपोज टू आइडल वर्शिप. और मोहम्मद किसके अपोज में थे? मूर्ति पूजा के मतलब अगेंस्ट में थे. मोहम्मद वाज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड रिच पीपल ऑफ मक्का. अब देखिए हर रिलीजन में थोड़ा बहुत जो ऑर्थोडॉक्स और रिच पीपल थे मक्का के, मतलब अमीर लोग, उनको पसंद नहीं आ रहे थे. क्यों नहीं पसंद आ रहे थे? क्योंकि धर्म में वो आइडल वर्शिप और या जो कहिएगा रिजिडनेस, तो उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की और अच्छी बातें बताई, इसलिए लोगों को वो सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था. ही मूव टू मदीना. तो अब कहाँ से चले गए? वो मदीना चले गए फिर से. उसके बाद उन्होंने क्या किया? वेयर ही वॉज वार्मली वेलकम बाय द पीपल. वहां के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया. ओके. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद 632, अबू बकर प्रॉफिट फ्रेंड वर द फर्स्ट एडल्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम. अबू बकर जो प्रॉफिट के दोस्त थे, वो पहले मतलब ये थे एडल्ट थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया. ही बिकेम अ खलीफा. और वो क्या हुए? खलीफा बन गए. अपने आप को उन्होंने क्या कहा कि आई एम अ खलीफा. He was the Khalifa enjoyed full political and religious power. अब इनको क्या हुआ? ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर, ऑर्थोडॉक्स कट्टर को कहते हैं. और खलीफा को मतलब उस समय मुस्लिम रिलीजन में खलीफा सबसे बड़ा पोस्ट था, और जिसको कि सब कुछ मतलब धार्मिक और पॉलिटिकल सब सारा पावर मिला हुआ था. मक्का एंड मदीना आर द टू होली सिटीज ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम. कहता है मक्का और मदीना जो है होली मुस्लिमों का दो होली सिटी, होली मतलब पवित्र शहर है. आज भी लोग वहां हज करने के लिए जाते हैं. इस्लाम प्रोफागेटेड फेथ इन अल्लाह. अब इस्लाम क्या बताता है? अल्लाह के भीतर विश्वास करो. एंड द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद. और मोहम्मद को अपना पैगंबर ईश्वर का दूत, गॉड, ये गॉड के पैगाम लेकर आने वाले पैगंबर, ऐसा आदमी जो आसमान से पैगाम लेकर आया है. Prophet Muhammad preached that Allah punishes us for the bad deeds and rewards us for the good deeds. अब उन्होंने क्या बताया? अल्लाह हम लोगों को पनिश करते हैं, सजा देते हैं. किस चीज के लिए? अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो गॉड हम लोग को पनिशमेंट देते हैं, एंड रिवार्ड देते हैं. कब देते हैं? जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोग को रिवार्ड भी देते हैं. देखिए गॉड मतलब जो अच्छा और बुरा जो हम लोग जानते हैं, तो उससे एक चीज सीखते हैं कि वी शुड डू ऑलवेज, वी शुड फॉलो द राइट पथ, वी शुड एक्ट गुड थिंग्स, और वी शुड ट्राई टू स्पीक ट्रुथ. तो
ये दैट इज द वॉइस ऑफ आवर इनर सोल। ये आवाज हमारे अंदर से भी आती है। और इन द क्लास ऑल्सो एंड इन टूडे दिस ऑनलाइन क्लास ऑल्सो आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स एवरी डे। मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि आप लोगों को हमेशा ही सच बोलना चाहिए, स्पेशली विथ योर पेरेंट्स, विथ योर टीचर्स, और ट्राई टू कमिट। अपने सच को मानने से हमको क्या होगा, ठीक है थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा, स्कॉल्ड कर सकते हैं पेरेंट्स, बट दे विल give us a right advice and they will and right path also. So यहाँ भी देखिए हर रिलीजन में भी बताया गया है और हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इसको फील करते हैं that Prophet Muhammad preached that Allah punishes us for the bad deeds and rewards us for the good deeds. He also propagated the concept of equality. Equality का मतलब all are equal. भगवान के आगे सभी बराबर है। The Quran says that to regulate one's life as a true Muslim. अब अगर कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम। वो अब जो भी गाइडलाइन लेते हैं कुरान से लेते हैं। तो कुरान मतलब मुस्लिम्स जो भी गाइडलाइन रिलीजियस सोशल जो भी वो लोग गाइडलाइन लेते हैं अपने कुरान से पढ़कर लेते हैं। तो अब कुरान में क्या कहता है, मोहम्मद साहब गॉड ने क्या कहा है कि सारे लोग जो है टू रेगुलेट वंस लाइफ एज ए ट्रू मुस्लिम, अपने आप को मतलब एक अच्छा मुस्लिम बताने के लिए अ पर्सन हैज टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल इन हिज लाइफ। एक आदमी एक पर्सन को अपने लाइफ में 5 प्रिंसिपल बनाना चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट, ही शुड ऑलवेज प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड। भगवान एक है, उसको हमेशा ये मानना चाहिए गॉड इज ओनली वन, दैट इज अल्लाह एंड मुहम्मद एज हिज प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ। पहला है भगवान और इस धरती पर उनके दूत के रूप में किसको माना जाए? मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद को। एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स डेली, और हर मुस्लिम को 5 टाइम दिन में मतलब प्रेयर पढ़ना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून इन ए मॉस्क विथ अदर्स, और एक दिन वीक में एक दिन फ्राइडे के दिन दूसरों के साथ मिलकर, सारे लोग मिलकर एक साथ मॉस्क में, मस्जिद में प्रेयर करना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज वन शुड गिव आल्म्स टू द पुअर, मतलब गरीबों को मदद करना चाहिए। आल्म्स तो मतलब दान, ये इसको मान लीजिए, बेगिंग नहीं, गरीबों को दान देना चाहिए, आल्म्स ये बात है। वन शुड गिव आल्म्स टू द पुअर, और ये लोग जानते हैं, ये लोग मतलब जो रोजा रखते हैं तो उसके बाद जो उनका ईद होता है तो उस समय ये लोग जो है अपने खाने का एक कुछ हिस्सा रोजा के बाद जो खाते हैं तो कुछ हिस्सा रख भी देते हैं, और उसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट, इनकम का एक ये जो है रखते हैं, और हर एवरी मंथ दे गिव आल्म्स टू द पुअर और हेल्प द पुअर। एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान फ्रॉम डॉन टू डस्क। अब कहता है हर मुस्लिम को रोजा रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? रमजान के महीने में। कब से कब तक? सुबह से लेकर शाम तक। डॉन मतलब सूर्योदय का जो ये होता है पहले, मतलब उसी समय से, और डस्क का मतलब अंधेरा तक। वन शुड इफ पॉसिबल गो टू हज और मक्का एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, और अगर संभव हो तो हर किसी को एक बार अपने लाइफ टाइम में हज करने के लिए मक्का जाना चाहिए, एटलीस्ट वन, पूरे जिंदगी में एक बार। Do you know Quran written in Arabic provide the Muslim believers with everything that they need to lead a good and pious life? अब देखिए इसमें बता रहा है कि अरबिक में लिखा हुआ है कुरान, और जो लोग उस धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम को, तो वो जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना भी गाइडलाइन चाहिए वो कुरान में मिलता है। अच्छा बताइए क्रिश्चियंस का ये बुक क्या है? बताइए, which is the holy book of Christians? बाइबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हिंदुओं का एक ऐसा बुक बताइए जिसको माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है उसमें। भगवत गीता। Who has written रामायण? तुलसीदास। वाल्मीकि ने भी लिखा, संस्कृत में लिखा, तो तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखा। यस, रामचरितमानस लिखा उन्होंने, और रामायण वाल्मीकि ने लिखा है।
और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप लोग जानते हैं, इट इज वेरी गुड, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद वाज दैट ही यूनाइटेड द स्कैटर्ड अरब एम्पायर। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, अरब लोग आप बिखरे हुए थे, मतलब आपस में बटे हुए थे, आपस में लड़ते भी रहते थे, उसको उन्होंने यूनाइट कर दिया अंडर वन फेथ, एक विश्वास। वो विश्वास क्या था? दैट वाज इस्लाम। द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सक्सेसर्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू मेन सेक्ट्स विद इन इस्लाम। अब इस्लाम के अंदर जो अबू बकर जो बने थे खलीफा, तो अब उसी तरह आपस में उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि उनके बाद कौन खलीफा बनेगा। तो इस्लाम जो है दो सेक्ट में बट गया, दो भाग में बट गया। अब यहाँ कौन सा था? दिस वेर द सुन्नी एंड द शिया सेक्ट। क्या क्या था? सुन्नी और शिया, दो इसमें बट गया। मतलब दे बोथ ऑफ मुस्लिम, लेकिन एक सुन्नी कहलाते हैं और एक शिया कहलाते हैं। सिखिज्म, द ओरिजिन ऑफ सिखिज्म कैन बी ट्रेस बैक टू द टाइम ऑफ गुरु नानक। अब गुरु नानक से कहता है कि हम लोग उसमें वापस जाएं, तो उसी समय से ये धर्म शुरू हुआ था। द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, और उन्हीं को सिखों का पहला गुरु भी माना जाता है। ही वॉज बोर्न इन 1469। अब गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। अच्छा, बताएंगे कोई सिखों के होली बुक का नाम क्या है? बताइए। मैम गुरु ग्रंथ साहिब। मैम गुरु नानक देव। नो, गुरु नानक देव तो पहले गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब किसने कहा? मैम आदि किसने ग्रंथ। कहा? मैम आदि ग्रंथ। मैम आदि ग्रंथ होगा। मैम साहिब आदि जी। ग्रंथ, आदि ग्रंथ नो। गुरु बानी, शबद श्री और श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ। ठीक है ना? आदि ग्रंथ का सिख इज द सीक्रेट स्क्रिप्चर ऑफ द सिख इज द आदि ग्रंथ, और उनका जो है जो उसमें लिखा हुआ है उसको जो है गुरु ग्रंथ साहिब ही कहते हैं। ग्रंथ साहिब। जो हम लोग गुरुद्वारा में जाते हैं तो देखते हैं ना, वो एक जगह एक कुछ रखा रहता है, वो लोग पंखे करते रहते हैं, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है ना? वही तख्त भगवान, वहीं पे किताब उनका, जिसका वो लोग उसमें से पढ़ते रहते हैं। He was born in 1469. Since childhood, he was very happy in the company of saints and Sufis. अब जब गुरु नानक बहुत छोटे थे, उसी समय से मतलब साधुओं और सूफियों के संग, सूफी मतलब जिनका मतलब रिलीजन, जो हर रिलीजन के बारे में बताते थे, उन लोग सूफी संत कहे जाते थे, उनके साथ बहुत खुश रहते थे। He propagated that to be one with God, one has to be egoless and denounce lust for worthy प्लेजर। अब उन्होंने भी कहा, प्रोफागेट मतलब प्रचार किया, क्या कहा कि अगर भगवान से आप अपने मिलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी वन विद द गॉड, अब आपको क्या करना है? वन हैज टू बी ईगोलेस, अपने अंदर कोई घमंड नहीं रखना है, एंड डिनाउंस लस्ट फॉर वर्ल्डली प्लेजर, और दुनिया के प्रति वैसा लस्ट मतलब लालच, दुनिया का जो सांसारिक सुख होता है उसमें कम से कम उस पे ध्यान देना है। लस्ट मतलब लालच। दैट इज ही बिलीव्ड इन निरंकार ब्रह्म और गॉड। निरंकार का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निरंकार? जिसका कोई आकार नहीं है। जिसका मैम जिसका कोई जिसका कोई आकार नहीं है। आकार नहीं तो है। हम आर्य समाज में भी आकार पढ़ते हैं ना, नहीं है। आर्य समाज का दूसरा नियम कोई बोलेगा? हम याद है किसी को? यस मैम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु एक एक करके अजन्मा बोलो, अनंत। आज सुनते हैं तुम मुझसे। अभी मैम कौन बोल रहा था? उदित, मैम उदित राज। उदित बता दीजिए, उदित के बाद प्रत्युष बोलेंगे। बोलिए, आज सुनेंगे अभी। ईश्वर हाँ, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य। बोलिए प्रत्युष राज नाम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वनित्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। वेरी गुड। सानवी शर्मा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वानंदयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है,
उसी की उपासना करने योग्य है। वेरी गुड सानवी। आयुष राज नाउ। आयुष राज Yes, ma'am. 7I। Yes, ma'am. आयुष 7I बोलिए। आर्य समाज का दूसरा नियम। आयुष, आर यू लिसनिंग मी? आयुष, नो। और कोई बोलेंगे? वो आयुष राज अभी वेटिंग रूम में चला गया। और कोई बोलेंगे? मैम एनीवन एल्स? मैम खुशी याद है कि नहीं? लगता है नहीं याद। याद है मैम। ओके, खुशी कुमारी। यस खुशी बोलिए। खुशी ईश्वर बोलिए। सच्चिदानंद स्वरूप आवाज नहीं आ रही आपकी खुशी, बिल्कुल नहीं आ रही। मैम हाँ बोलिए। मैम मेरी वॉइस आ रही? बहुत बहुत स्लो, बहुत ही स्लो। मैम नो, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम हाँ, नाउ इट इज क्लियर। यस, नाउ मैम इट इज ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार अनादि अनुपम नित्य पवित्र सर्वेश्वर सर्वव्यापक और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। बहुत बढ़िया। ओके गुड। नाउ कम ऑन। निरंकार का मतलब समझ में आ गया, जिसका कोई आकार नहीं। फॉर हियर नाउ कम बैक ऑन सिखिज्म। फॉर हिम यहाँ पर होता है फॉर गुरु नानक। फॉर हिम राम एंड रहीम वे आर द सेम। राम और रहीम दोनों ही एक ही जैसे, मतलब दोनों एक है। निरंकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, और क्या कहना था, राम और रहीम मतलब वननेस ऑफ गॉड। यहाँ कहने का मतलब है वननेस ऑफ गॉड, भगवान एक है। ही बिलीव्ड इन सेल्फलेस एंड ऑनेस्ट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और उनको सबसे ज्यादा क्या था, सेल्फलेस, मतलब आप कोई ये नहीं, बिना किसी के मतलब ये सोचे हुए बिना ऑनेस्ट सर्विस, मतलब ह्यूमैनिटी का जो सबसे ज्यादा मतलब क्या है, लोगों की सेवा करना। आप आज भी गुरुद्वारे में जाइए तो वहां पे देखिए, बिना पूछे हुए आपको वहां के गुरुद्वारे के लंगर में कभी खाए हैं आप लोग? नो मैम। खाए हैं? यस मैम। यस यस। हाँ, यस मैम। फिर आप लोग वहाँ पूछा, वहाँ धर्म और जाति नहीं पूछी जाती, बस आप जाइए बैठिए, वो लोग खिलाते हैं। ऐसा होता है ना। तो अभी भी मतलब सबसे ज्यादा जो कभी भी इंडिया में कोविड और कुछ भी हुआ तो सिख धर्म वालों ने सबसे ज्यादा मदद किया है लोगों को, मतलब हेल्प किया है पुअर को। और मतलब खाना तो जरूर आज भी वो लोग लंगर में खिलाते हैं। और ये जो है गुरु नानक का देव का ही बनाया हुआ है। Yes, ma'am. गुरु नानक। हाँ, संगत एंड पंगत। संगत का मतलब साथ, मैम संगति। यस, संगत का मतलब अच्छे लोगों के साथ रहिए। पंगत मतलब जब सारे लोग साथ खाना बैठ खाना। करके, पंगत, हाँ पंगत का मतलब क्या हो, सारे लोग साथ बैठ करके ईश्वर की चर्चा भी करिए, एक्सचेंज भी व्यू करिए और बैठकर खाना भी खाइए। संगत इज द रिलीजियस गैदरिंग वेयर एवरीवन रिसाइट द नेम ऑफ द गॉड, जहाँ सारे लोग बैठ करके भगवान का नाम लीजिए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और रेस। कोई आप जाति धर्म कुछ नहीं, सब लोग मिल करके भगवान का नाम लेंगे। पंगत is eating langar by sitting together in a room without any distinction of rich or poor, caste or creed, race or color. ये देखिए कितनी बड़ी बात है। बस यही रिलीजन है, यही धर्म। दिस इज द रिलीजन, यही धर्म। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म भी यही सिखाता है हम लोगों को, ऑर्थोडॉक्स होना नहीं सिखाता है, लेकिन लोग उसका फायदा उठाते हैं। दे मतलब डिफाइन द रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश। गुरु नानक प्रीच टू कीर्तन। आप कहते हैं गुरु नानक देव जी कैसे बोलते थे, अपना मतलब उपदेश देते थे कीर्तन। कीर्तन मतलब गा करके। सेल्फ कंपोज बानी एंड सॉन्ग्स ऑफ अदर सन्स। और दूसरे मतलब सेल्फ कंपोज बानी मतलब खुद बनाते थे कि क्या बोलना चाहिए, और उसके बाद जो है एंड सॉन्ग्स ऑफ अदर सन, दूसरे जो संत होते थे उनके गानों को भी वो गाते थे। सिखिज्म इज बेस्ड ऑन गुरु शिष्य ट्रेडिशन। कहते हैं सिखिज्म अब किस पर बेस्ड है, गुरु और शिष्य ट्रेडिशन पर बेस्ड है। ही द सेक्रेड स्कल्पचर ऑफ सिख इज द आदि ग्रंथ। अब उनका जो मतलब कहिएगा कि पवित्र ये किताब आदि ग्रंथ। यस बोलिए।
मैम स्क्रिप्चर मतलब ग्रंथ होता है ना? हाँ, मतलब उसको बानी, स्क्रिप्चर भाषा, बानी, उसको सबको मिलाकर कहेंगे स्क्रिप्चर को, ठीक है। ग्रंथ, आदि ग्रंथ। दिस होली स्क्रिप्चर इज देयर गुरु। अब यही देखिए, यही होली जो बानी है, किताब है, वो उनका क्या है, गुरु, उसी को। जैसे अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, किसका पढ़ा, इस्लाम का पढ़ा। तो इस्लाम में भी क्या है, कौन सी बुक है हम लोगों के उनके पास, कुरान। बताइए। कुरान। 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 कुरान से वो लोग गाइड पूरा उनको लेना है, एक अच्छा जिंदगी जीने का, सब कुछ उसमें दिया है। सिखों का भी देखिए ओनली वन बुक, और वो है, उससे उन आदि लोग का ग्रंथ। क्या है, हाँ, आदि ग्रंथ। द हिम्स आर नोन एज गुरबानी और शबद। और उसमें जो लिखे हुए जो ये है, मतलब हिम्स मतलब श्लोक, और जो हम लोग कहें उसको क्या कहते हैं, गुरु की बानी और शबद कहलाता है, शब्द। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज द सोर्स ऑफ डिवाइन कीर्तन फॉर द सिख। और गुरु उसी से वो लोग गुरुओं की कीर्तन को गाते हैं। गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक पास्ट अवे इन 1539 CE एट करतारपुर। करतारपुर जगह है, वहीं पे उनका निधन हुआ। अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, अ ट्रू सिख, शिष्य, ठीक है, इज वन हु बिलीव इन वन गॉड। एक सही सिख कौन है, जो बिलीव करता है एक भगवान में। हैज कंप्लीट फेथ इन 10 गुरुज। और जो 10 गुरु हैं सिखों के, पहले गुरु गुरु नानक, और आखिरी गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। बाकी में गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, तेग और बहादुर। बहुत सारे, हाँ, ये लोग हुए गुरु। तो उनका जो है मतलब पहले और आखिरी नाम अच्छी तरह से याद है, बाकी गुरु का नाम बताएंगे आप लोगों को। Guru Nanak passed away in 1539 CE at Kartarpur. According to Sikhism, a true Sikh is one who believes in one God. He has complete faith in 10 gurus, who follows Sri Guru Granth Sahib and acts in accordance with the message of Guru Bani. और वैसा ही काम करते हैं जो गुरुओं की बानी है, उसी तरह से। Every Sikh should be baptized by taking अमृत। Baptized मतलब अपने को पवित्र कर लेना। अमृत, अमृत पी करके, शुद्ध जल पी करके, जो गुरुद्वारा में पिलाया जाता है जब उनका कोई धार्मिक रस्म होता है। तो द सेकेंड गुरु, गुरु अंगद, देखिए सेकेंड गुरु अंगद थे। कलेक्टेड द हिम्स ऑफ गुरु नानक इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट में जमा किया, जो कि पढ़ते हैं सारे सिख, उसको पढ़ते हैं। गुरु रामदास डग द होली टैंक नोन एज अमृतसर। गुरु रामदास ने जो अमृतसर में जो होली टैंक है, जो कि जिसको कि स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा पे, जिसमें जो टैंक बना हुआ है, मैम स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। हाँ, गुरुद्वारा उसी पे बना हुआ है, नोन एज अमृतसर। अमृत का सर मतलब वहीं पे रखा हुआ है, अमृत वही। जैसे हम लोग गंगा जल को रखते हैं, तो वो यहाँ का पानी वो लोग इसी तरह पवित्र मानते हैं। द सिटी ऑफ अमृतसर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब इन द सेंटर ऑफ द टैंक। उसी अमृतसर के नाम पर अमृत वो जो बना, तो उसी के नाम पर अमृतसर शहर बस गया। और गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा बनवाए हरमंदिर साहिब इन द सेंटर ऑफ द टैंक। उस टैंक के बीचों बीच गुरु द्वारा बना, जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। It is also known as the Golden Temple. Guru Hargobind constructed the Akal Takht or the throne of God near the Golden Temple. Golden Temple के नजदीक में गुरु हरगोबिंद ने क्या बना दिया, अकाल तख्त बना दिया, जो कि उस पे अकाल तख्त पे ही भगवान को, उनके गुरुओं की बानी को रखा जाता है, आदि ग्रंथ रखे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। गोल्डन टेम्पल। गुरु तेग बहादुर was involved in the fighting against the oppression by the Mughal. अब गुरु तेग बहादुर जो थे वो मुगलों से हम लड़ते रहे, मतलब औरंगजेब स्पेशली। He inculcated courage among the Sikh to fight against the atrocities of the Mughal ruler. Inculcate मतलब सिखों के अंदर भर दिए, क्या भर दिए, हिम्मत। जो मुगल रूलर जो है सिख धर्म का जो विरोध करते थे और सिखों को बहुत सताते थे, क्योंकि सिख बहुत ब्रेव हुआ करते हैं आज भी, तो उन्होंने उनके अंदर हिम्मत भरा कि जो मतलब जो उस समय के जो राजा थे, रूलर थे, उनका विरोध करो, वो गलत काम हमारे साथ कर रहे हैं। द लास्ट गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा पंथ एट अमृतसर, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर में खालसा पंथ बनाए, द पॉपुलरली नोन एज तखत श्री केसगढ़ साहिब। उस जगह का नाम, आनंदपुर का नाम जो है ज्यादा है, उसका सेकेंड नेम है तखत श्री केसगढ़ साहिब। ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699 में, बैसाखी ये लोग कब मनाते हैं बताइए, अप्रैल का वो मंथ होता है, डेट बताइए। मैम 14 जनवरी को।
14 मैम अप्रैल। जब इन लोग का फसल कटता है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद डू यू नो एवरी अमृतधारी सिख, अमृतधारी का मतलब जो लोग मतलब जैसे हम लोग के यहाँ हिंदुओं में वो संस्कार होता है, उसी तरह इनका अमृत धारण कराया जाता है। तो उनको 5 के, अब उनके यहाँ 5 के, क्या क्या के होता है वो देखिए, ऑन हिज बॉडी ऑल द टाइम, अपने बॉडी पे हमेशा ये 5 के रखना है। दे आर द सिंबल ऑफ सिखिज्म। अब इसको माना जाता है कि ये सिखिज्म का सिंबल है। दे आर, मैम इनको कक्कड़ कहते हैं। बड़ा बाल रखना है, कंघा बालों को साफ करने के लिए बाल को कंघी करना है, कड़ा, कड़ा हाथ में पहनना है, कड़ा, कच्छा एंड किरपान। कच्छा क्या है? वो सफाई के लिए, कीप योरसेल्फ क्लीन, दैट इज द मतलब इनर कपड़ा जरूर पहनिए, एंड किरपान, और अपने साथ एक तलवार भी रखिए। किरपान मतलब छोटा सा, उनका बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, लेकिन रखे रहते हैं। उस समय सेफ्टी के लिए जरूरी था, जो वो तो मुगल रूलर से लड़ते रहते थे, तो सेफ्टी के लिए उस समय जरूरी था। नाउ चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टैंड द लेसन? यस मैम, यस मैम, यस मैम। Yes, Yes. Have you enjoyed the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Now, next Bhakti movement we will complete in our tomorrow class. और homework is learn the lesson carefully. Learn the lesson carefully. किसी का कोई query है तो वो हमसे अभी पूछ सकता है। Anyone who has any query? हाँ बोलिए। मैम मेरा जो होमवर्क कॉपी है वो मतलब खत्म फिनिश हो गया, तो मैं क्या अपना जो चैप्टर है, जो ये वाला चैप्टर और चैप्टर 20 है, तो वो मैं अपने CW कॉपी में बना सकती हूँ? यस यस, अभी नई कॉपी लेने की जरूरत नहीं, अभी CW भी करते रहिए, कहीं भी लिख कर रखिए, कॉपी करेक्शन हो जाएगा आपका, बना सकते हैं। बट राइट द क्वेश्चन आंसर बाय योरसेल्फ। अगर कोई दिक्कत होगी तब आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोसिटीज, मतलब जो उनका ज्यादा बढ़ा चढ़ा जो तंग करते हैं, एट्रोसिटीज मतलब उनका सताने का जो ये है, दैट इज एट्रोसिटी। कंपटीशन और एनीवन एल्स, किसी और का क्वेश्चन है कुछ भी? एनीथिंग? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो। Now let us conclude the class. Have a good day, children. थैंक यू मैम। Have a good day, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice Thank day, you, ma'am. ma'am. Welcome. Have a nice day, ma'am. थैंक यू मैम। Yes.